So we have already completed the rules, I think. So have you written two rules of vector addition? Okay. So had I given any question related to vector addition? Anything? No. Okay. So okay. So today I will start with the example. I will start with the example. 2, 3, 4 examples I will give. Okay. So now, okay. Okay. So let's start with the examples. First, read out the rules, two rules, please. Plus, first revise the two rules. Revise two rules. Revise two rules. No. Please revise what you have written in your copy on in your notebook. Okay. So this is A vector, and let us call this is B vector. This is B vector. So I need to add these two vectors. So I have to find R vector is equal to A plus B vector. So this is the addition of two vectors. So how will you add these two vectors? Tell me. Head to tail combination. Head to tail combination. So first vector's head, second vector's tail. First vector's head and second vector's tail. So now add first vector's head, second vector's tail. So if you translate this vector, this is B vector. Okay. So just shifted this vector B vector and adding tail to head. Head of the A vector and tail of the B vector is added without changing the direction and the magnitude. You will get A plus B. And second rule, draw a vector from the first vector and join the last vector's head with a vector. ओके सो ये वेक्टर से मैंने ज्वाइन कर दिया तो ये क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर या इसी को आर वेक्टर भी बोलें या ए प्लस आर वेक्टर जो है वो क्या है ए प्लस बी का जो एडिशन है वो आर वेक्टर है ओके so this is the addition we have already framed the two rules
ओके प्लीज डोंट इंटरप्ट. This is what is like vector, unlike vector. I will come to that point. जो मैं अभी बता रहा हूँ सिर्फ उसी पे फोकस रखो. ओके ऑफ कोर्स. अब अगर ए वेक्टर ऐसा रहता, बी वेक्टर ऐसा रहता, ऐड कैसे करते? ए वेक्टर बी वेक्टर का टेल ऐड करते ऐसा. ओके और फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड से ज्वाइन कर देते. तो ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर था. एडिशन किए तो क्या मुझे मिला? ए प्लस बी वेक्टर. इसी को मैं आर वेक्टर बोल दिया. ओके इजी. जस्ट टेल टू हेड टू टेल कॉम्बिनेशन. फर्स्ट वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर का टेल. या किसी को मन करता है अरे यार ऐसे क्यों कर रहे हो, दूसरे तरह से कर दो थोड़ा, तो दूसरे तरह से करने का मन है तो देखो ऐसे भी कर सकते हैं कि बी वेक्टर ऐसे ही रहने देते, ए वेक्टर को ऐड कर देते, तो बी वेक्टर का हेड और ए वेक्टर का टेल, ए वेक्टर का टेल, दिस इज बी वेक्टर. तो फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड ज्वाइन करते, दिस विल बी द ए प्लस बी या बी प्लस ए. बोथ आर सेम. ए प्लस बी और बी प्लस ए बोथ आर सेम. You can see this vector and this vector has the same direction. Okay. What is your doubt? I'm just adding the vector and nothing else. पहले ऐड करना सीख लो उसके बाद. Yes, both the processes are correct. Both the processes are correct. You can add either by other method. You can add b plus a or a plus b. Both will give same answer. Okay. B plus a vector, both are same. So what is this? The length of this is the length of what? A plus b vector. Okay, suppose can you say that if a is 4 unit and b and b is 4 unit and a is suppose ki 3 unit, can you say that this is 7 unit? Can you say this is 7 unit? No, 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 no. This is not a scalar. You cannot add 4 plus 3 is equal to 7. No. It will be anything. Okay. It can be 4, 5, it can be 4, it can be 3, it can be 2, it can be 7. Depends. Okay. So first, ये याद रखो कि if you are adding b plus a, if you are writing r is equal to a plus b, बस समझो यहाँ पे जो मैं बोलता हूँ अगर नहीं है तो उसे लिख लो शॉर्ट नोट में खुद अपना पॉइंट बना के कि ऐसा होता है. ओके. If you are writing r is equal to a plus b, then magnitude of r you cannot, if a है suppose कि मैंने बोला कि magnitude of a मतलब length of a जो है मैंने बोला कि 4 unit 3 unit है, suppose 3 unit. Magnitude of b is equal to 4 unit है. So magnitude of r, यहाँ पे तो r is equal to a plus b लिख दिए हैं, तो आप बोलिएगा कि नहीं सर 4, यहाँ भी r is equal to सर a plus b लिखे है ना, तो a का जो है 3 यूनिट है, b जो है 4 है,
तो आप यहाँ पे 3 लिख दीजिए, 3 + 4 जो है वो 7 हो जाएगा आर, नहीं होगा। ओके, समझ में आ रहा ना? दिस इज वेक्टर, डायरेक्शन इज देयर। ओके, और प्रैक्टिकली सोचो ना ऐसे कि एक लेंथ ऐसा है, एक लेंथ ऐसा है, तो ये टोटल लेंथ 7 है, ये टोटल लेंथ 7 होगा, लेकिन ये क्या 7 होगा क्या? नहीं होगा। अगर सपोज कि मैं बोलूं कि अगर ये 3 है और ये 2 है, ये 3 और ये 2 है, तो क्या ये 5 होगा क्या? होगा क्या? विल इट बी 5? नो। मतलब कि डायग्राम में दिख रहा है 5 नहीं होगा तो नहीं होगा, और यहाँ पे नहीं दिख रहा क्या? मतलब कि दिस लेंथ इज 5, दिस लेंथ इज 5, दिस प्लस दिस पाथ इज 5, दिस पाथ प्लस दिस पाथ इज 5, this path plus this path is 7, but not this is 7, this is not 7, this is less than 7. Okay, so this is triangle, actually this is triangle, so one side of a triangle is 4 and one side of triangle is 3, then can it be 7? No, 7 नहीं होगा। तो ये यहाँ पे ध्यान रखें कि r is equal to, if you are writing r is equal to a plus b, if you are writing r is equal to a plus b, r is equal to a plus b, then it doesn't mean that if magnitude of a is 3 and magnitude of b is 4, then you cannot add simply कि 3 plus 4 is equal to 7. No, this is wrong. Okay, आगे चलो। अभी मैं कुछ नहीं पूछ रहा हूँ, बस एडिशन सीख रहे हैं अभी सिर्फ, ठीक है? वेक्टर एडिशन, नथिंग एल्स। व्हाट इज दिव्यांशु गुप्ता, व्हाट इज योर डाउट? What is your doubt? Don't waste time. Please ask. Please write the message. No, this is not simple addition. This is not a scalar addition. This is vector addition. Here magnitude plus direction is involved. So you cannot add simply 3 plus 4. Now, I'm just giving you, this is a vector. This is a vector. This is b vector. Okay. This is a vector. This is b vector. Suppose this has a 5 unit. This has a length of 5 unit. This has a length of 4 unit. Then add a plus b vector. Then draw a plus b, and what is the magnitude of our vector? What is your doubt, Suvangi? Unmute yourself and tell your doubt. हेलो सर। सर मेरा डाउट है कि अगर सपोज वेक्टर ए जो है वो वर्टिकली स्ट्रेट होता और वेक्टर बी जो है वो हॉरिजॉन्टली स्ट्रेट होता तो हमें मतलब पाइथागोरस अप्लाई कर लेते। यस सर, मैं वही बोल रही हूँ। हाँ, तो सर वो उसे कर सकते हैं वैसे? हाँ कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। ओके,
not possible because they are going straight, so I think they will add up in. So add these two vector. So how will you add? So first, this is the first a vector का हेड कहाँ है, यहाँ है, और b वेक्टर का टेल कहाँ है, यहाँ. ऐड करना है, मतलब a वेक्टर यहाँ हुआ, फिर b वेक्टर का टेल कहाँ है, यहीं, यहाँ पे b वेक्टर बना दिए, हुआ या नहीं, a वेक्टर ये है, b वेक्टर ये. अब रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ कौन सा होगा, फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड. तो मैं जानबूझ के थोड़ा अलग बना रहा हूँ लाइन ताकि आपको दिखे. दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर, दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल टू a प्लस b वेक्टर. ओके, दिखा कैसे ऐड कर रहे हैं? हेड टू टेल कॉम्बिनेशन ओनली, डायरेक्शन चेंज नहीं करना, हेड टू टेल. ए वेक्टर ऐसा था, इसको उठाएं, इसके टेल पे रख दिया. अच्छा, जो वेक्टर मिला वही फर्स्ट वेक्टर के इनिशियल से लास्ट वेक्टर के हेड तक ज्वाइन कर दिए. सिंपल, नथिंग एल्स, इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए. दिस इज वेरी सिंपल. ओके, सो ए वेक्टर. अब बताओ कि ये इसका लेंथ, ये लेंथ कितना होगा, ये आर वेक्टर तो ये आया ना पूरा, तो व्हाट इज द टोटल लेंथ, व्हाट इज द टोटल लेंथ? 9. Why? This is 5, now this is 4. In this case you can say this is 9. Why? Because both are in same direction, both are in same direction. If both are in same direction, then you can add simply because both have same direction. Okay, now giving you one example more. This is a vector, this is b vector, this is b vector, this is 5 unit, this is 2 unit. So now what is the magnitude of a plus b vector? What is the magnitude of a plus b vector is equal to r vector? What is the magnitude? हाँ यांस सही है, अध्याय गलत है, अवेश गलत है, सुजीत सही है, सुरसा सही है, चिरंजीवी गलत है, दिव्यांशु गुप्ता गलत है, वेदांती रॉन्ग, अजिंक्य सही था, अविशा सही है, वेदांत रॉन्ग, अरब सही है, दिव्यांशु रॉन्ग. Okay, yes, 3 is the answer, 3 is the answer. Okay, now see. Okay, don't write message now. Now see, addition, simple addition है. कैसे addition है? Simple. First vector, this is the first vector. Okay, first vector. अब second vector का क्या addition कर रहे हैं, a plus b, तो first vector का head यहाँ है, second vector का tail यहाँ है, तो ये vector को लेके आए, तो second vector का tail होगा. दिस इज बी वेक्टर. देखो ये ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर के टेल को ज्वाइन किए तो मिलेगा ये वेक्टर. तो अब ये फाइनल वेक्टर का हेड हुआ और इनिशियल वेक्टर का टेल यहाँ है, तो दिस विल बी दी रिजल्टेंट वेक्टर. रिजल्टेंट वेक्टर एक्चुअली क्या होगा, ए प्लस बी. दिख रहा, ए प्लस बी. तो अब बताओ, तो a प्लस बी कौन सा है, सिर्फ इतना ही बड़ा है ना, a प्लस बी. तो दिस इज 5 और दिस इज 2, तो लेंथ कितना हुआ a प्लस बी का, इतना ही बड़ा. तो दिस इज 5 और ये इसमें से कितना माइनस करना होगा मुझे, कहाँ गया 2, तो दिस इज 3 यूनिट. तो ये जो है वो 3 यूनिट का होगा सिर्फ. ओके, एडिशन कर रहा हूं सिर्फ, किसी को नहीं दिखा तो फिर से. ए ऐसा था, बी वेक्टर को मैंने ज्वाइन किया तो बी वेक्टर ऐसा आएगा. फिर क्या होता है, एडिशन रूल. सेकंड रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को ज्वाइन कीजिए, वही जो होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर देगा. तो रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस बी वेक्टर. ओके, सो इन दिस केस ए प्लस बी इज एक्चुअली 3 यूनिट ओनली. थिंक, सोचो थोड़ा, एडिशन रूल है सिर्फ. बोलो दिव्यांश क्या बोलना है.
सर कुछ देर पहले आपने बोला कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर। जब ए और बी का वैल्यू देगा तो वो जरूरी नहीं है कि वो 7 ही है, जैसे हमने 3 और 4 दिया, वो 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, हर 7 भी आ कंडीशन में सकता है, आपने कहा था। तो सर डायग्राम डिफरेंट हो सकता है ना डिफरेंट केस में। यहाँ पे पर्टिकुलर डायग्राम है ना, तो पर्टिकुलर डायग्राम में पर्टिकुलर आंसर आएगा। हर एक पर्टिकुलर डायग्राम में पर्टिकुलर आंसर आएगा, ठीक है। हर एक पर्टिकुलर अच्छा सर, डायग्राम में और यहाँ पे एडिशन है, सिर्फ एडिशन कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ कि वेक्टर को हेड टू टेल कॉम्बिनेशन ही कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो वेक्टर आ रहा है उसका लेंथ निकाल रहा हूँ, नथिंग एल्स। और सर यहाँ पे जो आर आखिरी क्वेश्चन सर आपने जो बनाया उसमें फिर ये लिखना चाहिए ना, ए का वेक्टर माइनस बी का वेक्टर। यही तो समझना है ना वेक्टर को, यही तो वेक्टर समझना है। आरुष, डोंट राइट एनीथिंग। यही तो समझना है वेक्टर एडिशन का, कि वेक्टर एडिशन मतलब सिर्फ ऐड करना नहीं होता है, एडिशन में सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है खुद ब खुद। यही तो वेक्टर समझना है आपको। इसीलिए मैं डिफरेंट एग्जांपल्स ले रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। थैंक यू सर। ओके, यही जो चीज अभी न्यू हो ना तो उसको एक्सेप्ट इट। ओके, और ओके सर। क्योंकि मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, वेक्टर एडिशन ही कर रहा हूँ ना, कि फर्स्ट का हेड और सेकंड का टेल को ऐड कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो आ रहा है उसी को मैं मेजर कर रहा हूँ ना, या कुछ और भी कर रहा हूँ? नहीं सर, और कुछ नहीं कर रहा। बस एडिशन कर रहा हूँ। क्या फर्स्ट वेक्टर का हेड, सेकंड वेक्टर का टेल, उसको अरेंज किया जो जैसे आया, रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है। ओके सर, थैंक यू। ओके, एक और एग्जांपल नोटेड एवरीवन। फिर से एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। ए वेक्टर है ये जो 5 यूनिट का है, 5 यूनिट का है, ठीक है। बी वेक्टर है, वो भी 5 यूनिट का है। क्या है, ए वेक्टर है 5 यूनिट का, बी वेक्टर भी क्या है 5 यूनिट का। तो ए प्लस बी वेक्टर क्या होगा यहाँ पे, ए प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? वेक्टर एडिशन, सिंपल वेक्टर एडिशन, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन। फर्स्ट का हेड, ये फर्स्ट का हेड था, दूसरे का टेल यहाँ पे रखेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, वहीं पे उसके पॉइंट पे आ गया। तो यहाँ पे कोई वेक्टर नहीं बन पाएगा, मतलब यहाँ पे कोई रिजल्टेंट वेक्टर नहीं बनेगा, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर का क्या होगा, जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोलते हैं, नाम है, बस नाम रखा गया है। समझ में आया ना क्या? तो वेक्टर एडिशन में जीरो भी हो सकता है। क्या 5 प्लस 5, आप बोलते हैं नहीं सर 5 प्लस 5 तो 10 होगा, लेकिन जीरो कैसे आ गया? आई एम जस्ट यूजिंग ओनली द वेक्टर एडिशन रूल, और कुछ नहीं कर रहा मैं। आर यू गेटिंग? आई एम डूइंग नथिंग। बस वेक्टर एडिशन को लेकर के मैं जरूरी नहीं है कि निगेटिव हो जाए। निगेटिव क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए अपने आप ये सब्ट्रैक्ट हो जा रहा है। इफ यू आर एडिंग, लेकिन एडिशन में भी ये सब्ट्रैक्शन हो रहा है, क्यों? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट है एक दूसरे का। तो वेक्टर एडिशन जो है वो एक्चुअली एडिशन ही रहेगा यहाँ, लेकिन जीरो हो जाएगा। यही तो वेक्टर समझना है आपको, कि वेक्टर एडिशन कैन बी जीरो। If you are adding 5 unit vector, 5 unit vector, 5 unit vector, you can get 0 vector.
but in mathematics if you are adding 5 5 5 you will get 15. so this is not a simple mathematics, that's why मैं इसीलिए इतना एग्जांपल देके समझा रहा हूँ जितने बुक में आपके नहीं है. Yes, vector addition can be negative. Okay. अगर ये 6 यूनिट होता तो 6 यूनिट नेगेटिव हो जाता, मतलब कि ये डायरेक्शन सिर्फ बी के डायरेक्शन में. यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आर वेक्टर का डायरेक्शन क्या दे रहा है, आर वेक्टर का डायरेक्शन एक्चुअली यहाँ पे क्या था, आर वेक्टर का डायरेक्शन किधर है, ए वेक्टर के डायरेक्शन में है, ए वेक्टर के डायरेक्शन में ही है ना आर वेक्टर का डायरेक्शन. यहाँ पे आर वेक्टर एक्चुअली किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ए वेक्टर के डायरेक्शन में. यहाँ पे आर वेक्टर किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ए वेक्टर के डायरेक्शन में. ओके, यहाँ पे सॉरी कहाँ गए, यहाँ भी आर वेक्टर किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के डायरेक्शन में, या यूं बोल ले ए वेक्टर के डायरेक्शन में या बी वेक्टर, क्योंकि ए वेक्टर भी इधर है बी वेक्टर भी इधर है. तो आर वेक्टर जो है जो ए प्लस बी आया है दोनों को ऐड करके उसका डायरेक्शन किधर है, ए वेक्टर के या बी वेक्टर, दोनों में से कुछ भी हो. यहाँ पे इफ यू आर टेकिंग डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर, तो what is the magnitude of r vector, 3 unit, and direction of r vector will be in the direction of a vector. तो सेम वाइज अगर यहाँ पे अगर आप बोल रहे हैं कि ये अगर 6 यूनिट हो जाता, ये 6 b अगर 6 यूनिट होता, इफ b जो है वो 6 यूनिट होता, तो a छोटा होता b बड़ा हो जाता, नहीं होता. तो r वेक्टर जो था इनिशियल वेक्टर और फाइनल वेक्टर का हेड मिलाते हैं तो दिस इज द r वेक्टर, और वो क्या होता, a वेक्टर प्लस b वेक्टर ही रहता, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड तो 1 रहता. इसका मैग्नीट्यूड ये कितना होता, इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट रहता. आर यू गेटिंग, मैग्नीट्यूड कितना होता 1 यूनिट, लेकिन डायरेक्शन किधर होता आर वेक्टर का, डायरेक्शन किधर होता, बी वेक्टर के डायरेक्शन में होता. आर यू गेटिंग, द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर will be in the direction of b vector, not in the a vector direction. Okay, डायरेक्शन बी वेक्टर का हो गया. ओके, तो चलो यहां तक नोट कर लिए हो तो एक दो पॉइंट लिखो, कोई जिसको नोट करना है मैं 1 मिनट दे रहा हूं. आई एम गिविंग यू 1 मिनट ओनली, जस्ट नोट इट डाउन क्विक, हरी अप. सॉरी, जिसको नोट डाउन करना है क्विक, क्विक फास्ट. अब -2 +2 अभी कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ. ओके, इसके बाद माइनस बताऊंगा. ओके, वेट, स्टेप बाय स्टेप चलूंगा ना. वेट फॉर मिनट. Yes, if vector are not parallel then it will subtract, if vector are parallel then it will add. Okay, if vector are parallel means if a vector has the same direction it will add up, if a vector has the different direction it will automatically subtract its magnitude, but else you will write a plus b only. If you are adding vector, if both have same direction then magnitude will increase. If one vector has the opposite direction then magnitude will decrease. Write down quick, 1 minute only. Because this is 6 and this is 5, so this is 1 only.
जिनको लास्ट पार्ट समझना है वो मैं बता रहा हूँ. If this is a vector, this is b vector. If you are adding, then add a vector का head, b vector का tail add किए, ऐसा हो गया. ये b vector, ये a vector. So now रिजल्टेंट वेक्टर निकालना है तो फर्स्ट वेक्टर का हेड और लास्ट वेक्टर का टेल, सॉरी फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर का हेड, तो दिस इज द रिजल्टेंट वेक्टर. तो रिजल्टेंट वेक्टर का क्या लिखेंगे, ऐड ही कर रहे हैं ना, तो a प्लस बी. ओके, सो अब मैग्नीट्यूड ये इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ ये है, ये 6 था, ये 5 है, तो इसका लेंथ कितना होगा 1. तो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर विल बी 1. Okay, now we are moving further. Okay, write down. Note. नोट करके लिखो. Parallel vectors have same direction and we also call it as like vectors. ओके, ये फर्स्ट पॉइंट हुआ. सेकंड पॉइंट, एंटी पैरेलल vectors have opposite direction. अपोजिट डायरेक्शन. पैरेलल वेक्टर का मतलब ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दीज आर दी पैरेलल वेक्टर्स. ठीक है ना, कैसा भी बना लीजिए, डायरेक्शन अगर सेम है दोनों का तो दीज आर दी पैरेलल वेक्टर्स. एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैव अपोजिट डायरेक्शन and we also call it as unlike vector. जैसे ये हो गया, ये a vector मान लो, ये b vector, a and b vector are anti parallel. Why? Because both have the opposite direction. Both has opposite direction. What is the dot, Arush? Sir, for unlike vectors, sir, for A, sir, if we take an example of A and B, so if B is slanting and A is straight,
Then is it also called unlike vectors or only for opposite direction? Can it have the same direction if any one vector is inclined? Sir, no. Sir, I'm Then asking if it is only opposite direction for anti-parallel vectors or it is slanting or something. It is not also counted. anti-parallel means these are anti-parallels. So, sir, if These are one is anti-parallels. no, sir, I'm asking if one is straight and the other one is slanting. Slanting in which sense? S This type. no, sir. Sir, straight but still like it is in This at type. an yes, sir. Both has the same direction. Acha, so that is okay, sir. Sorry, sir. Fine. I understood, sir. Okay. Thank you, sir. Any other doubt? Now write third point. If any vector is multiplied with negative sign, then its direction get reversed gets reversed and magnitude remains the same. मैंने लिख दिया यहाँ पे if any vector is multiplied with negative sign then its direction gets reversed and magnitude remains the same. मतलब कैसे एग्जांपल में लिख लें. If this is a vector, if you multiply minus sign then its direction gets reversed. This is minus a vector, direction gets reversed. बट अगर इसका यूनिट अगर ये 5 यूनिट का है तो ये भी 5 यूनिट का ही होगा. ओके, माइनस साइन मल्टीप्लाई करना है. कौन सा है? मैं सारा कुछ तो लिख दिया हूँ, इसमें रिपीट क्या करना है. इफ ए वेक्टर इधर है तो माइनस अगर मल्टीप्लाई करूं ए वेक्टर में तो ये ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर बन जाएगा और उसका डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा. लेकिन अगर इसका लेंथ अगर 5 है तो इसका भी लेंथ 5 ही रहेगा. यही मैंने लिखा है यहाँ पे. नो, मैग्नीट्यूड 5 यूनिट ही होगा. डायरेक्शन ओनली गेट्स रिवर्स्ड. माइनस साइन ओनली चेंजेस द डायरेक्शन, not the magnitude. Okay, so this minus a vector is another vector. Minus a vector is a different vector from a vector. First listen everyone. Minus a vector is the another vector. Aradhya, please listen. A vector and minus a. If you multiply a vector is with minus sign, then its direction gets reversed. डायरेक्शन जस्ट अपोजिट हो जाएगा लेकिन मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. मतलब कि अब ये डायरेक्शन तो अपोजिट हो गया. अमित शर्मा,
अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया है। जब मैं पूछूं कि पूछिए डाउट तब पूछिए। जस्ट प्लीज लिसन केयरफुली मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ओके if the direction is in this, if direction gets reversed then vector will get reversed. Okay, if this is a vector this is minus a vector, because अगर मैं ये वेक्टर में माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। माइनस एक का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। अगर ए ईस्ट डायरेक्शन में है तो माइनस ए का डायरेक्शन क्या होगा, वेस्ट। ओके सो लेकिन ये अब तो डायरेक्शन अपोजिट हो गया तो वेक्टर चेंज हो गया। वेक्टर चेंज हो गया, लेट अस कॉल इट एज बी वेक्टर। लेट अस कॉल इट एज बी वेक्टर, अनदर वेक्टर, because this is not minus a vector is not a vector because its direction is changed. okay डायरेक्शन अगर किसी वेक्टर का डायरेक्शन अगर चेंज कर दें तो वो वेक्टर चेंज हो जाता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड चेंज कर दें तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे तो डायरेक्ट माइनस में मल्टीप्लाई करके क्या किया हूँ, डायरेक्शन चेंज कर दिया। सो इफ यू जस्ट चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर देन व्हाट डज दैट मीन, direction gets reversed, so it will become a new vector. Let us call minus a vector as a b vector. Let's name it as b vector. So both are opposite. Okay, now understood this part? Now if I am adding, suppose let us take one example. If you are just suppose ki I am just writing a minus b vector is equal to r vector, can I write it as a vector plus of minus b vector? Can I write it as? So what is this? Suppose this is minus b vector, let us call minus b vector, this is not a b vector, this is a minus b vector, this is minus b vector. So let us call it as another vector c vector, because this is not a b vector. Why this is not a b vector? Because minus sign is multiplied and it has changed its direction. So if direction is changed then vector is another vector. Okay, this is not a b vector, this is minus b vector, and minus b vector is different from b vector. Why? Both have opposite direction. So minus b vector, let us call minus b vector as c vector. नाम दे दिया माइनस b vector का, कोई नाम दे दिए c vector, नाम रख दिए। तो मैं लिख सकता हूं ना कि दिस इज a प्लस c vector, ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? किसी का नाम रख दिए। अब देखो, अब देखो, दिस इज ए वेक्टर, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये 5 यूनिट है, ये 2 यूनिट है। मैं बोल रहा हूं a माइनस बी वेक्टर निकालो, a माइनस बी। तो पहले यहाँ पे देखते हैं पहले कैसे करते हैं, a माइनस बी। तो मुझे एक्चुअली क्या करना है, a प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, यही ना मतलब? क्या माइनस बी वेक्टर चाहिए, मतलब दो वेक्टर को एडिशन करना है। प्लीज लिसन फर्स्ट, यहाँ पे मुझे क्या करना है, a वेक्टर और माइनस बी वेक्टर का। तो लेट अस कॉल माइनस बी वेक्टर एज सी वेक्टर। तो माइनस बी वेक्टर कैसा होगा भाई, माइनस बी वेक्टर कैसा होगा? तो दिस इज बी वेक्टर, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। इज दिस अ माइनस बी वेक्टर? दिस इज अ माइनस बी वेक्टर। लेट अस कॉल इट एज
सी वेक्टर, बोल सकते हैं। माइनस मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज हो गया, यस और नो, यस और नो। तो लेट अस कॉल इट एज अ सी वेक्टर, कोई नया नया नाम दे दिए इसका, कुछ न्यू नेम है इसका, सी वेक्टर। ओके, तो अब सी, तो मतलब क्या, ये वेक्टर कौन सा वेक्टर है, ये कौन सा वेक्टर है भाई, सी वेक्टर है ना एक्चुअली, ये क्या है, ये एक सी वेक्टर है। तो मुझे एक्चुअली ऐड क्या करना है, ए प्लस सी वेक्टर मुझे ऐड करना है, करना है। तो ए प्लस सी, जो ए वेक्टर ऐसा और सी वेक्टर ऐसा, तो एडिशन रूल क्या बोलता है कि फर्स्ट का हेड दूसरे का टेल। तो फर्स्ट का हेड कहाँ है भाई, फर्स्ट, ये फर्स्ट है, दिस इज ए वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। अब बताओ सी जो है वो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ सी वेक्टर, 2 ओनली, 2। क्यों, क्योंकि बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, 2 है, तो माइनस बी वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 होगा। तो जो माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है वही सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा। तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 2 होगा। मैंने ऊपर ही लिखवाया यहाँ पे कि डायरेक्शन चेंज होता है माइनस मल्टीप्लाई करने से, मैग्नीट्यूड वोंट चेंज। सो अब एडिशन करना है ए वेक्टर और सी वेक्टर का, ए वेक्टर और सी वेक्टर को मुझे ऐड करना है। तो ए वेक्टर और सी वेक्टर को ऐड कर लेते हैं तुरंत, क्विक। तो अब सी वेक्टर क्या है, यहाँ है, तो सी वेक्टर का टेल यहाँ है, फर्स्ट ए वेक्टर यहाँ है, सॉरी लंबा बना लो ए वेक्टर, ठीक है। सी वेक्टर यहाँ है, तो सी वेक्टर का ऐड करना है। तो इसको उठाएं यहाँ से, इसको उठाए, इसके हेड पे रख दिया यहाँ पे, क्योंकि टेल को हेड से मिलाना है तो यहाँ पे रखे, तो टेल को हेड से मिलाएं, दिस इज सी वेक्टर। तो मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, ए प्लस सी वेक्टर निकाल रहा हूँ। तो ए प्लस सी वेक्टर क्या आया, यहाँ ये फाइनल हेड आया, ये फाइनल वेक्टर का हेड आया, और ये इनिशियल एडिशन रूल सिर्फ अप्लाई कर रहा हूँ, ये इनिशियल वेक्टर का टेल है। तो क्या करूंगा मैं, फर्स्ट वेक्टर, इन्हीं फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड से मल्टीप्लाई करूँ, ज्वाइन कर दूंगा, ठीक है। तो दिस इज दी आर वेक्टर। वो आर वेक्टर एक्चुअली क्या है, ए प्लस सी वेक्टर ही है, और ए प्लस सी वेक्टर एक्चुअली क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी। तो एक्चुअली ये आर क्या निकला अपन को, ए माइनस बी वेक्टर। तो आप यूं कह लें कि दिस इज ए वेक्टर, और बी वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में है तो करना क्या होता है कि बी वेक्टर को जस्ट अपोजिट कीजिए और ऐड कर दीजिए, बी वेक्टर को क्या कीजिए, अपोजिट कीजिए और ऐड कर दीजिए। तो ऐड किए तो दिस इज इट। अब दिस इज आर और दिस इज माइनस बी, सी वेक्टर क्या है, माइनस बी वेक्टर है, दिस इज ए वेक्टर। तो आर वेक्टर मुझे क्या मिला, ए माइनस बी वेक्टर। तो आर वेक्टर का लेंथ कितना है, इतना ही है ना आर वेक्टर का लेंथ, ये 5 है, इसका लेंथ 5, इसका लेंथ 2, तो 5 माइनस 2 विल बी दिस लेंथ। तो इसका आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका लेंथ कितना होगा, 3 यूनिट, 3 यूनिट। अरे समझे या नहीं, माइनस माइनस वेक्टर को कैसे अप्लाई करते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आया हूँ, आई डोंट थिंक एनीवन वुड हैव एनी प्रॉब्लम। ओके ओके, ऑल क्लियर। सो नाउ पहले इसको नोट करो, क्विक नोट इट डाउन। Those who have noted, please wait 1 minute for others.
Okay. So let us move further. Example. This is A vector and suppose this is B vector. B vector मैंने अपोजिट बनाया है. इसका है 5 यूनिट, ये जो है वो 3 यूनिट का है. ठीक है ना. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए में ए प्लस बी वेक्टर का, बी में ए माइनस बी वेक्टर, दोनों का. क्विक सॉल्व कीजिए, सॉल्व करो, डायग्राम बनाओ, सॉल्व करो क्विक. मैं आंसर बता देता हूँ. इसका a प्लस बी का आएगा 2 यूनिट और ये आएगा 8 यूनिट. आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या हो गया, ऐड कर रहे हैं तो छोटा हो गया, माइनस कर रहे हैं बड़ा हो गया. क्या ऐड कर रहे हैं छोटा हो गया, माइनस कर रहे हैं बड़ा हो गया. ओके, तो चलो देखते हैं. पहले a प्लस बी देखते हैं. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, फर्स्ट पार्ट. ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर का ऐड करना है, तो बी वेक्टर ऐड किए. ए वेक्टर ऐसा, बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ऐड किए, तो हेड टू टेल कॉम्बिनेशन. बी वेक्टर ऐड हुआ, तो अब ये क्या आएगा, दिस इज आर वेक्टर. ये आर वेक्टर क्या आया, फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड को ज्वाइन किया, तो यही आर वेक्टर होगा. आर वेक्टर इक्वल टू क्या आया मुझे, ए प्लस बी वेक्टर. अब इसका लेंथ कितना होगा, छोटा सा लेंथ, ये 5 है, ये 3 है, तो ये कितना होगा 2. सो मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर यहाँ पे 2 यूनिट होगा. अंडरस्टूड. एडिशन सिर्फ कर रहा हूं मैं, नथिंग एल्स. यहाँ पे ए वेक्टर और बी वेक्टर को मैंने ऐड किया है सिर्फ. ओके, डायरेक्शन का सिर्फ खेल है यहाँ पे, इसीलिए बहुतों को प्रॉब्लम होती है डायरेक्शन में. बी पार्ट, बी पार्ट,
ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो पहले ए वेक्टर किधर है, ए वेक्टर इधर, माइनस बी वेक्टर किधर होगा, राइट होगा या लेफ्ट होगा, डायरेक्शन टेल मी, माइनस बी वेक्टर लेफ्ट और राइट, राइट, किसने बोला लेफ्ट, क्यों होगा वो देखो, बी वेक्टर इधर है, यहाँ पे देखो बी वेक्टर इधर था, क्वेश्चन में मैंने दिया था बी वेक्टर इधर, माइनस मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, तो मतलब ये डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज द माइनस बी वेक्टर, दिस इज माइनस बी वेक्टर। अब अगर किसी को डाउट है तो, अगर किसी को माइनस से प्रॉब्लम होता है ना, तो उसको कोई सी मान लो, अभी बाद में धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, सी मान लो, तो मुझे a माइनस बी एक्चुअली निकालना है, तो यू कैन राइट इट एज a प्लस सी वेक्टर, तो ये क्या चीज है, ये एक्चुअली सी वेक्टर है, तो ऐड करना है दो वेक्टर को, हेड टू टेल कॉम्बिनेशन, तो a वेक्टर ऐसा, सी वेक्टर कैसा है, सी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो टेल को हेड के साथ मिलाना है, तो ये दिस इज द सी वेक्टर, सी वेक्टर एक्चुअली क्या है, माइनस बी वेक्टर है, तो लेंथ कितना, अब रिजल्टेंट क्या होगा, इनिशियल से लेके फाइनल तक, दिस इज, क्योंकि फाइनल हेड को मिलाना है कहां से, फर्स्ट के टेल से, सेकंड रूल ऑफ वेक्टर, तो ये क्या होगा, दिस इज आर वेक्टर इज इक्वल टू ए प्लस ए माइनस बी वेक्टर, क्यों, ओके, सो अब देखो इस, ये आर वेक्टर ए माइनस बी का लेंथ कितना आया, इतना आया, तो ये 5 था और ये कितना 3, तो टोटल लेंथ कितना होगा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ आर वेक्टर यहाँ पे क्या आएगा, 8 यूनिट, अंडरस्टूड, डायरेक्शन का खेल है। ओके, व्हाट इज द डाउट तनिष्का, तनिषा आई थिंक, डाउट क्या है, पूछना क्या चाह रहे हैं, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, पूछो। सर वो माइनस सर वो बी वाला माइनस वाला नहीं समझ आया क्या नहीं समझे इसमें, सर। सर वो पहले वो उल्टा किया था ना सर, मतलब प्लस, अगर वो मतलब प्लस है तो जो हेड टू टेल। डायरेक्शन है एज इट इज डायरेक्शन के साथ ऐड हो गया है, वेक्टर एडिशन कैसे करते हैं, हेड टू टेल ना, इसका हाँ सर, इसका टेल यहाँ, इसका हेड यहाँ है, इसका टेल हाँ यहाँ, इसका हेड यहाँ, तो हेड टू टेल कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या होगा, ये इस पे आ जाएगा, तो सिर्फ बचेगा क्या, ये लेंथ, हाँ तो इसीलिए a प्लस बी जो है सिर्फ रिजल्टेंट जो आएगा, रिजल्टेंट कैसे होता है कि दो वेक्टर को ऐड किए और लास्ट में क्या होता है कि सेकेंड रूल कि फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर के हेड को मिलाते हैं, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट वेक्टर ऐड हुआ, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, यहाँ पे क्या हुआ कि फर्स्ट वेक्टर a था, बी वेक्टर को ऐड किए, तो फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड जो मिलाएंगे वो क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर, तो एडिशन हो रहा है, मतलब a प्लस बी देगा, तो ये a प्लस बी दिया, तो इसका लेंथ कितना है a प्लस बी का, 5 माइनस 3, क्यों, क्योंकि इसका लेंथ कितना होगा, ये 5 था ये 3 था, तो इसका लेंथ हाँ 2, सर, वो फाइंड करना है। अब माइनस बी वेक्टर, अब बी वेक्टर एक्चुअली किधर था, बी वेक्टर अपोजिट था, तो माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, चेंज, हाँ दिस इज द माइनस बी वेक्टर, तो अगर किसी को माइनस में प्रॉब्लम होता है तो लेट अस कॉल इट एज सी वेक्टर, कि इसको मैं सी वेक्टर कर दिया, a माइनस बी कैन बी रिटन एज a प्लस सी वेक्टर, हाँ तो आप दोनों वेक्टर को ऐड करना है, तो पहले का हेड दूसरे का टेल ऐड किए, तो पहले का हेड यहाँ है दूसरे का टेल, तो ऐसा बनेगा, पहले का हेड यहाँ है फिर दूसरे का टेल ऐड करूंगा तो क्या होगा, ऐसा आएगा, ओ हाँ आप फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड मिलाएंगे तो वही रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर एक्चुअली क्या था, a प्लस सी, और c हाँ एक्चुअली क्या है, माइनस बी, तो क्या मिलेगा मुझे, a माइनस बी, तो दिस इज a माइनस बी, और a माइनस बी का लेंथ कितना है, इतना, मतलब ये 5 हाँ था ये 3, तो कितना होगा 8, 8। ओके सर, थैंक यू। एनी डाउट नाउ किसी को, नॉट नाउ सर। नो आई एम नॉट गोइंग टू टीच मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, चलो एक क्वेश्चन,
अब चलो सर 1 मिनट। ना, म्यूट करो अपना। हाँ नाउ नेक्स्ट going to give you example now. Okay, question. This is a vector. Suppose this is b vector. This is a vector, this is b vector. Draw with resultant vector, with resultant vector a में ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है, बताया ना कैसे ऐड करते हैं। a प्लस बी बताना है कैसे होगा, बी पार्ट में a माइनस बी कैसा होगा वो बताना है, सी b माइनस ए कैसा होगा वो बताना है, डी b प्लस ए कैसा होगा वो बताना है। चलो चार डायग्राम बनाना है, चारों डायग्राम ट्राई करो क्विक। दिस इज बी वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर। बी वेक्टर कौन सा है, ये है बी वेक्टर, दिस इज ए वेक्टर। चलो ड्रॉ करो, ए प्लस बी, ए माइनस बी, बी माइनस ए, बी प्लस ए। अभी जितना पढ़ाया है सब उसी में होगा। यस, सेंड देम इन ग्रुप क्विक। दिस इज द लास्ट टॉपिक, दिस इज द लास्ट टॉपिक। जस्ट नोट डाउन द क्वेश्चन फर्स्ट, जो जिनको है क्वेश्चन फर्स्ट नोट कीजिए। नो नथिंग, वैल्यू का क्या मतलब है, एडिशन करना है वेक्टर का, सिर्फ ऐड करके मुझे दिखाओ कि कैसा डायग्राम बनेगा, इसमें वैल्यू क्या चाहिए, डायग्राम ऐड करना है, डायग्राम बताओ क्या होगा कैसा होगा। लिख लिया क्वेश्चन, नोटेड, क्वेश्चन बताओ नोटेड और नॉट, क्विक। नोट कर लिया क्वेश्चन, ओके। जिनको पीछे देखना था मैं उनके लिए अब ये कर रहा हूँ, ठीक है। Those who have not noted, प्लीज जिनको डाउट है, जिनको जो करना है प्लीज सेंड। D is B plus A. D is question number part D is B plus A. What is the diagram of B plus A? Part C is B minus A. Yes, I am going to explain this question after 2-3 minutes. I am going to discuss this question after 2-3 minutes.
ट्राई, फिर मैं जब सॉल्व करूंगा तो चेक करना कि सही है या नहीं। ट्राई, ट्राई ऑन योर ओन, ट्राई करो खुद। ओके, उसके बाद मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, नो प्रॉब्लम, खुद खुद के पास रखो, ठीक है, सॉल्व करके खुद के पास रखो, फिर चेक करना, ठीक है। गिविंग यू 2 मिनट्स, फिर एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। Okay, so now I am going to draw it now. देखो कितना इजी है, कितना इजी होगा, देखो। तो देखो कितना इजी है। अब एक्सप्लेन करूंगा तो लगेगा कि अरे यार क्या था फालतू। देख लो, पहले वेक्टर देख लो किसका डायरेक्शन क्या है, ठीक है। ए राइट है और बी जो है अप है। ए पार्ट, ए प्लस बी, सिंपल वेक्टर एडिशन। ए है, उसके हेड पे दूसरा बी का टेल रखेंगे, दिस इज बी, दिस इज ए, और फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड ऐड कर देंगे, तो दिस इज, ये क्या मिलेगा मुझे, ए प्लस बी इक्वल टू आर वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। समझ गए ना? दिस इज इजी, वेरी इजी। बी, ए माइनस बी, तो पहले माइनस बी चाहिए, तो बी एक्चुअली ऐसा है, तो माइनस बी कैसा होगा, अपोजिट, दिस इज माइनस बी। ओके, ए कैसा था, ए ऐसा था। ए को किसके साथ ऐड करना है, यू कैन ऑल्सो राइट इट एज ए प्लस ऑफ माइनस बी। तो अब ए के हेड पे किसको रखूंगा, माइनस बी को, क्योंकि ए को ऐड करना है किसके साथ, माइनस बी के साथ, तो माइनस बी का टेल रखूंगा, तो दिस इज माइनस बी का टेल, दिस इज माइनस बी वेक्टर। सो फर्स्ट का टेल और लास्ट का हेड को ज्वाइन करना है वेक्टर से, तो दिस, ये क्या होगा, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, और यू कैन राइट इट एज ए माइनस बी, सिंपल इजी। सी, बी माइनस ए, और यू कैन राइट इट एज बी प्लस ऑफ माइनस ए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक्चुअली मतलब निकाल रहा हूं कि a प्लस बी अगर मैं बोल रहा हूं तो जस्ट पुट द टेल ऑफ b ऑन a। इफ आई से b प्लस a देन पुट द टेल ऑफ a ऑन b। b माइनस a का मतलब b प्लस ऑफ माइनस a,
लिख सकते हैं। तो माइनस ए का डायरेक्शन कैसा, ए इधर, तो माइनस ए किधर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में माइनस ए हो जाएगा माइनस ए। अब क्या करना है, बी है, बी किधर था भाई, तो बी इधर था, तो बी के हेड पे बी को किसके साथ ऐड करना है, माइनस ए, तो माइनस ए इधर है, सॉरी बी ये है, नहीं दिख रहा था ना, ओके, तो बी ये है, I just want to add with minus a, so minus a is this vector, so just left and just put the minus a on the head of minus b vector, so this is minus a, so this is addition हो गया, किसका किसका addition हो गया, b plus of minus a का addition हो गया। अब करना क्या कि फर्स्ट वेक्टर का टेल और लास्ट वेक्टर का हेड को ऐड कर देना है, तो दिस विल गिव व्हाट, b vector plus of minus a vector, so this will give b minus a, understood? Now fourth part, this is easy, all are easy. Now fourth part, यहीं पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ। फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ बी प्लस ए, तो बी वेक्टर ऐसा है, ए वेक्टर किधर था, ऐसा, ए वेक्टर इधर है, तो क्या करना है, बी के सिर पे किसको रखना है, ए के वेक्टर को, तो बी के सिर पे एक ए वेक्टर को रख दिए, तो अब फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर का हेड को ऐड कर दिया, तो दिस विल गिव बी प्लस ए। ऑफ कोर्स ए प्लस बी और बी प्लस ए का डायरेक्शन सेम होगा, तुम देखो, क्योंकि ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों सेम थिंग है, तो दिस इज बी प्लस ए और ए प्लस बी, देखो बी प्लस ए का डायरेक्शन इधर है और ए प्लस बी का भी डायरेक्शन उधर ही है, बोथ आर पैरेलल वेक्टर्स, देख रहे हो ना, दोनों सेम है, सेम डायरेक्शन में है ना, दोनों पैरेलल है ना, नहीं है, बोथ आर पैरेलल। अब बताओ किसके चारों सही हैं, ओके हाँ, एक ईमानदार दिखा जिसने बोला कि सर मेरा 3 सही है, गुड। ओके, अंडरस्टूड एवरीवन। समझ में आ गया ना? Okay, so just giving you one more example, just see here, okay everyone, note it down everyone, रुकूं या आगे बढ़ूं, जल्दी क्विक, क्या प्राप्ति, what is your doubt? Of course you can, of course, because a plus b and b plus a both are the same thing, but if anyone say a plus b, then add then just put the tel of b on a, not the tel of a on b. This is the convention we follow, okay? If something a plus b, if something a plus b is equal to b plus a, then we call it as associative principle or commutative, okay? No, shape नहीं vary करेगा, direction भी same होगा, magnitude भी same आएगा. If you writing a plus b and b plus a, then direction will be same and magnitude will be same. Of course it has the same magnitude as compared to both, दोनों का direction भी same होगा, magnitude भी same होगा. If you are adding a plus b or b plus a, both will have the same direction and magnitude, there won't be any difference, okay? No, that's no wrong, I just wanted you to just put the vector tel of the b vector on a vector,
That's all I mean only. If A plus B, then put the tail of B vector on a vector. If B plus A, then put the tail of A vector on B vector. Okay. Any doubt here? Yeah, yes, both are correct. One more example. One more example. आदित्य पाटिल, तुझे बहुत है जाने की, जल्दी. One more example. एक बॉडी है, ठीक है, 8 न्यूटन इधर है, 4 न्यूटन इधर है, 10 न्यूटन इधर है और 6 न्यूटन इधर है. ओके, ऐसा है. तो बताना है कि बॉडी किधर मूव करेगा, with what force body will move, in which direction, what is the direction of net force. तो पहले यहाँ पे देखो, ये डायरेक्शन में क्या है, सेम डायरेक्शन है, और ये जो है एक सेम डायरेक्शन है, मतलब एक लाइन है, ये एक लाइन है और एक ये लाइन है. ओके ओके, तो आप देखो ये एक लाइन है, तो यहाँ पे क्या है, 10 इधर है और 6 इधर है, तो नेट फोर्स, नेट कितना होगा, just tell me what is the net. 4. In which direction, in which direction, in which direction, west or east? West. Good. अगर किसी को नहीं समझ में आया हो तो let us call it as F1 vector, let us call it as F2, let us call it as F3, let us call it as F4. Okay, is this fine? तो अब क्या है कि ये वेक्टर और ये 6 है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है. अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर को ऐड करेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा, टेल मी. डिक्रीज करेगा. डायरेक्शन अपोजिट में डिक्रीज करता है, डायरेक्शन सेम में इंक्रीज करता है. ठीक है, वी ऑलरेडी हैव सीन दिस. सो अब यहाँ पे तो ये बॉडी बना दी है यहाँ पे, तो बॉडी पे इधर क्या हुआ, इधर कितना आया, 10 - 6, तो 4 आया. 4 न्यूटन किधर, इधर, डायरेक्शन इधर ही रह जाएगा. इधर 8 है, इधर 4 है, तो नेट कितना होगा, इधर 4 न्यूटन होगा. ओके, तो इस बॉडी पे नेट फोर्स आप क्या, 4 न्यूटन इधर, 4 न्यूटन इधर, तो दो वेक्टर का सम करना है. क्योंकि नेट हमेशा कैसा, नेट जब भी बोले, नेट बोले, रिजल्टेंट बोले, मतलब एडिशन करना है. समझ में आया. नेट फोर्स बोले, नेट कुछ भी बोले ना, किसी भी चीज, किसी भी वेक्टर का नेट बोले, मतलब यू जस्ट ऐड ऑल दी वेक्टर्स, मतलब ऐड करना है. यू हैव टू ऐड ऑल दिस फोर्स. सो ऐड, ये दिस इज F1, दिस इज, सपोज कि दिस इज F, this is A vector and this is, let us call it B vector. So you have to add A plus B vector. Why A plus B? Because force is a vector quantity. You have to add it vectorally. वेक्टर जैसे ऐड होता है वैसे ऐड करना होगा, ऐसा नहीं कि 4 + 4 8 बोल दिए. समझ में आया. तो ऐड करना है, तो एक वेक्टर इधर है, अब एक वेक्टर नीचे है, तो इसको उठा के यहाँ पे रखे, इसके हेड पे. This is 4 Newton, this is 4 Newton. So this is the first vector का tail और last vector के head पे मिलाएंगे, तो this is the net force, this is the net force. तो body पे net force किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में. ये कौन सा डायरेक्शन है, साउथ वेस्ट. ये कौन सा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन वेस्ट है, ये डायरेक्शन साउथ है. किधर है डायरेक्शन, साउथ वेस्ट ना. समझ में आ रहा. अब बताओ, अगर मैं ये परपेंडिकुलर है, इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ कितना होगा, इसका लेंथ निकालना है. तो कैसे लेंथ निकालेंगे, पाइथागोरस आता है ना. एक ट्रायंगल है ये, एक्चुअली ये ट्रायंगल है ना, ये 4 है, ये 4 है,
तो इसका लेंथ क्या होगा 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट ओवर, तो क्या मिलेगा मतलब 4√2 न्यूटन, 4√2 न्यूटन। ओके, दिस इज द वेक्टर सम। लेंथ निकाल, अपन लेंथ निकाल रहे हैं, तो लेंथ कैसे निकालते हैं, लेंथ एक्चुअली कैसे निकालते हैं अपन? वेक्टर सम है, नो प्रॉब्लम, इसको नोट करो, ठीक है, जस्ट नोट डाउन। कैसे प्रोसीड करते हैं, नोट डाउन। पाइथागोरस लगाएंगे कैसे, दिस इज 4, दिस इज 4, so 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ पाइथागोरस, this will be 4√2 Newton. Okay. Something's wrong. Please try again. Answer is southwest and net force is 4√2 Newton. जैसा डायग्राम बनेगा, याद रखो, जैसा डायग्राम, जैसे आप पहले डायग्राम आपको मन हुआ ऐसे डायग्राम बना लिए, ठीक है, फिर ट्रायंगल का काम, फिर कंस्ट्रक्शन का काम आता है कि इसका लेंथ ऐसा है, इसका लेंथ ऐसा है, तो इसका लेंथ कितना होगा वो कंस्ट्रक्शन बताएगा आपको। ओके, द लेंथ ऑफ दैट वेक्टर विल गिव you will get by construction method, okay, or either by mathematics. Okay, फिजिक्स ये बोलता है कि ऐसा होगा, अब कैलकुलेट करना है तो मैथमेटिक्स लगा लो, ठीक है ना। तो जब आप मैथ्स में ट्रायंगल चैप्टर पढ़िएगा, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, तो ट्रायंगल में दो लेंथ एक ये लेंथ दे देगा, ये लेंथ दे देगा, तो ये लेंथ निकालना पड़ेगा। तो वैसे ही यहाँ पे ये लेंथ पता है, ये लेंथ पता है, ये 90 डिग्री पता है, तो ये लेंथ आपको निकालना होगा, ठीक है ना। That will come under the mathematical part. So direction will be southeast, southeast. So okay. So today's lecture is over now. So